Good morning, my dear students. I hope you all are doing well. So it's actually been long, that I haven't put up any video on YouTube. All right. So since I have been getting many requests from many of you, so I actually thought of finally doing it. Okay, once again. So from the last chapter that we discussed, that is from the rule of the road. All right. So rule of the road, from that part we actually did only half of it. All right, so if you have your book, you please take out your books and see page number 46, and from page number 46, that is from the third paragraph. Okay, before starting, I would just like to ask you that I got many requests. Some people asked me to explain in Hindi and English both, so that it becomes easier for everyone to understand. So I just would like to know from you guys. All right, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट पे बताना कि आप लोगों को दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो ठीक है, बिकॉज आई विल बी मिक्सिंग बोथ द लैंग्वेजेस. ऑल राइट, हिंदी में भी आई विल एक्सप्लेन एंड English maybe I will explain. Okay, so let's move on for today's class. See, that is page number 46, that is from the third paragraph. Okay. In all these and 1,000 other details, you and I please ourselves and ask no one's leave. We have a whole kingdom in which we rule alone, can do what we choose, be wise or ridiculous, harsh or easy, conventional or odd. Okay, so if you move back, okay, and if you recall, in the last class जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहाँ पे हम लोगों ने ये बात डिस्कस किया था कि जब लिबर्टी की बात होता है, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी, कुछ कुछ सिचुएशंस में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अपने पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल रिड्यूस करना पड़ता है, सो दैट दूसरों का जो लिबर्टी है वो क्या हो, बचा रहे, प्रिजर्व हो. ठीक है, मतलब वी कान जस्ट गो ऑल आउट एट टाइम्स इन सम सिचुएशंस. ठीक है, तो कुछ कुछ सिचुएशंस में हम लोग सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच सकते, बल्कि हम लोगों को लोगों के बारे में भी सोच के आगे बढ़ना पड़ता है. ठीक है, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसे भी होते हैं, देयर आर सम सिचुएशंस also where we can rule according to our own way, where we can be queen, where we can be a king. ठीक है, हम लोग अपने मन मुताबिक क्या कर सकते हैं, अपने लिबर्टी को फुल्ली यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो यही बात, दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड इन दिस पैराग्राफ. वी हैव अ होल किंगडम इन विच वी रूल अलोन. ऐसा कुछ कुछ, सी, होल किंगडम हियर एक्चुअली रेफर्स टू ऑल दोज circumstances, all those situations where we can rule alone. We can do what we choose. ठीक है, जो हम लोग को मन करेगा वो हम लोग कर सकते हैं. वहाँ पे हम लोगों को किसी और का परमिशन लेने का दरकार नहीं है. We need not have to think for others' liberty there. Alright, be wise or ridiculous. आप wise भी बनने को मन है, you can be wise, or if you wish to be ridiculous, you can act likewise also. Harsh or easy. Alright, so ये actually situations को डिफाइन कर रहा है. ऐसे कुछ सिचुएशंस में जहाँ पे आप अपने मुताबिक क्या कर सकते हो, एक्ट कर सकते हो. ठीक है, कन्वेंशनल और ऑड. कन्वेंशनल दैट मीन्स ऑर्डिनरी. आपको ऑर्डिनरी एक एक्शन पुट अप करना है, देन ऑल्सो यू कैन डू दैट. और इफ़ यू वांट टू बी ऑड, मतलब सबसे अलग कुछ आपको दिखना है या करना है, देन ऑल्सो यू कैन डू. Alright, only in those situations where only your personal liberty is concerned. So that you must keep in your mind. Okay, next see. But directly we step out of that kingdom, our personal liberty of action is restricted by other people's liberty. तो जैसे ही उस किंगडम से हम लोग बाहर निकल के आते हैं, we step out of that kingdom, तो क्या होता है, ऐसे सिचुएशंस हो जाएंगे, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आपके सामने आ जाएंगे जहाँ पे दूसरों का लिबर्टी के बारे में आपको सोचना पड़ जाए. तो वो एक कन्फाइंड है, दैट इज़ एक्चुअली कन्फाइंड, जहाँ पे आप अपने सिर्फ लिबर्टी के बारे में सोचोगे. ठीक है, जहाँ पे आप सोचोगे वो क्या होगा, वो सिचुएशंस कन्फाइंड रहेगा. बट वो किंगडम के बाहर, मतलब वो अपने जोन के बाहर आप जब निकलोगे, देन यू हैव टू थिंक फॉर अदर्स लिबर्टी टू. राइट, so I might like to practice on the trombone from midnight till 3 in the morning.
अभी देखो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है. दिस इज an example that is being put here. I might like to practice on the trombone from midnight, till 3 in the morning. Now, trombone, you can see here that the meaning is given, that is a musical instrument. Now, if you wish to play trombone, okay, that is a musical instrument at night, और वो भी कब से कितने टाइम के बीच में, दैट इज़ रात का मिडनाइट, दैट इज़ 12 बजे और सुबह का 3 बजे तक अगर आपको एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने को मन करेगा, ठीक है, मोहल्ले में जाके, आप अपने लोकेलिटी में बाहर जाके या घर में ही आप सपोज़ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपको प्ले करने को मन करा, और वो भी उस टाइम पे जब सारे लोग क्या करेंगे, सोते रहेंगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे तब? तो आपको तब ये सोचना होगा कि मेरा प्लेइंग ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट विल क्रिएट अ न्यूइसेंस टू अदर पीपल हु आर स्लीपिंग एट नाइट, है कि नहीं? तो उस मोमेंट पे आपको वो नहीं करना पड़ेगा. यू आर नॉट सपोज टू डू, okay, as a responsible citizen. All right, so that is what it says here. If I went on to the top of Helvellyn to do it, I could pleasure myself, but if I do it out in the streets, the neighbors will remind me that my liberty to blow the trombone interferes with their liberty to sleep in quiet. तो यहाँ पे 2 सिचुएशन दिया गया है. 2 situations are being given here. Alright, अगर आपको वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने को मन कर रहा है, आप कहीं पहाड़ में चले जाओ, ओके, दैट इज़ व्हाट इट इज़ बीइंग सेइंग, क्योंकि हेल्वेलिन का मीनिंग देखो यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज़ अ माउंटेन पीक इन वेल्स. सो वेल्स जो है वो यूके में है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जगह का नाम है यहाँ ये. तो आप चले जाओ माउंटेन, किसी माउंटेनियस एरिया में, ठीक है, आप नेचर को एक्सप्लोर करके, एन्जॉय करके, यू कैन प्ले द इंस्ट्रूमेंट एंड मेक यूज़ ऑफ इट, ठीक है. तो ऐसा जगह पे जाके अगर आप प्ले करोगे देन इट्स ओके, बिकॉज दैट विल नॉट हार्म, दैट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम टू एनी अदर पीपल. ऑलराइट, लेकिन आप ये सोचोगे कि मेरे को मन कर रहा है कि स्ट्रीट में जाके, रास्ते पे जाके आधी रात को मैं इंस्ट्रूमेंट चलाऊँगा, बजाऊँगी या बजाऊँगा, तो वो तो आसपास के लोगों को क्या क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. समझ में ये बात? तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ बीइंग सेड. इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशंस. कैसा माहौल है वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है. एंड आपको सोचना भी पड़ेगा कि आसपास अगर लोग हैं तो उन लोगों का लिबर्टी में कोई हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई हैम्पर नहीं होना चाहिए. तो यही बात ये बोला गया है कि अगर आप स्ट्रीट में जाके, रास्ते में जाके आप ट्रम्बोन बजाओगे तो लोग आपको क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम दिखाएंगे, ऑब्वियसली दिखाएंगे. अगर आप सो रहे हो रात को, कोई और बजाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्या, है कि नहीं? सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ बीइंग सेड. सो वी नीड टू थिंक एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ पुटिंग आवरसेल्व्स ऑल्सो इन दैट प्लेस. लाइक अगर मैं उन लोगों की जगह पे होती या होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता, ठीक है. दैट इज़ द एसेंस ऑफ actually enjoying liberty. Okay, next you see. There are a lot of people in the world and I have to accommodate my liberty to their liberties. तो इस दुनिया में, in this world, I'm not the only person who is living all alone, isn't it? And you are also not the only person who is living all alone. ठीक है? We are living in a society, and society is what? It's a group of people, persons. बहुत सारे लोग मिलके सोसाइटी बन रहे हैं. तो जिस चीज़ों में जो सर्कमस्टेंस हो या सिचुएशंस में जहाँ पे लोगों का लिबर्टी आ जाए, वहाँ पे हम लोग को सोचना पड़ेगा. लेकिन ऐसे कुछ चीज़ें या सिचुएशंस जहाँ पे हम लोग अपने मुताबिक, अपने अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग we can rule that in that situation, ठीक है. We can act as if I am the only queen, as if I am the only king there. Alright, so यही बात बोला गया है कि there are a lot of people in the world, and we know that, and I have to accommodate my liberty. I here actually refers to each and every audience here, each and every reader here. हम सबको सोचना है ये चीज़, मेरा लिबर्टी, उसका लिबर्टी, दोनों accommodate करना पड़ेगा, ठीक है. I can't go all out, या you can't go all out without thinking for my liberty, and I can't go all out without thinking for your liberty. Okay, so that is what it is being said in this paragraph. I hope ये आप लोगों को समझ में आया होगा. If you have any doubt, you can ask in the comments down below. All right, and
बाकी का नेक्स्ट पार्ट जो है वी शैल कंटिन्यू इन दैट आवर नेक्स्ट क्लास. एंड प्लीज़ आप लोग बताना कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इफ़ आई एक्सप्लेन it is comfortable or not. All right, so thank you very much.